Hello, Taurus people. Welcome to my reading. It's a love reading based on you and your partner. So, it's a bi monthly reading from 15th of September to 30th of September. Uh, this reading consists of love relationship, love life. You can watch it as a Taurus sun sign, as a Taurus moon sign, as a Taurus rising sign or ascendant sign, and as a Taurus Venus sign. Since it's a love reading, so planet Venus will be given importance in this reading since it's a planet and goddess of love. So you can watch it through all these signs. All these signs will validate. So it's a reading both for you and your partner. This side could be you, Taurus people, this side could be your partner, and vice versa. This side could be your partner, and this side could be you. So take it as it resonates with you because in this kind of reading, love reading, since both parties are involved, energies can flip. So take it as it resonates with you and your love life. Okay? Wish you all the very best for your love reading. Let's start with your reading. Universe, please guide the Taurus people. Let them know what they need to know in their love life. What changes do they need to bring? What improvement do they need to do in their love life? Please let them know what they need to know, universe. Please help the Taurus people and their partners. Let them know what they need to know. Okay. I'll be using 4 oracle decks for this reading of yours, love reading. Lovers Oracle deck, Romance Angels Oracle deck, True Emotions Oracle deck, and Fairies Oracle deck. Okay, this is how your reading will be. Well, the spread is ready. Let's start with your reading, Taurus people. Okay. Fine. Okay, let me tell you, I have divided this into 3 sections: feelings card, intentions card, and actions card. Feelings card, intentions card, and actions card. Okay, let's see the feelings part. This is how the card looks, Taurus people. It says, deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. If you're thinking of anything in your love life, thinking about taking any decision, any major decision in order to go ahead or step ahead in your love life. So this is the message for you, Taurus people. Hope you got the message that you already know the answer. It lies deep in your heart. So do what feels right. Okay, let's see what the angels have to say. Codependency. Codependency. Addictions are affecting your romantic life. If this is the case, so you have to alter this nature or habit of yours. Codependency means clinging on to each other, very desperately. Don't cling on to each other. Give space to each other. हर एक रिलेशनशिप में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है. तभी लव ग्रो कर पाएगा, नहीं तो लव चोक्ड हो जाएगा. कोडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? When you are addicted to that person, when you are obsessed about that person, that is when codependency develops between you two or between each other. And it is certainly not healthy. Codependency is certainly not healthy. It is absolutely
एन अनहेल्दी हैबिट। कोडिपेंडेंसी से आप ही बोलिए, ऑब्सेशन से, एडिक्शन से लव होता है क्या? लव इज पीस, लव इज ब्लिस, लव इज कामनेस, लव इज हैप्पीनेस। ये सब लव होता है। ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये लव नहीं होता है। इट्स अ डेविलिश फॉर्म ऑफ लव। It will definitely, it won't let your love to survive, it will die. The love will certainly die. If this is the state, love won't exist, my dear Taurus people and your partner. So do check on your relationship. देखिए कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्या आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्या कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन, ऑब्सेशन ऐसा चलता है क्या आपकी लव लाइफ में? क्लिंगिंग ऑन टू ईच अदर, टाइटली। स्पेस दीजिए एक दूसरे को, बैलेंस मेंटेन कीजिए, तभी तो लव जी पाएगा, ग्रो कर पाएगा, नहीं तो लव चोक्ड होके मर जाएगा। सो डू यू वॉन्ट दैट? सर्टनली यू डोंट। सो यू नो द आंसर वेरी वेल इनसाइड योर हार्ट कि क्या करने से लव लाइफ हमारा हम बचा सकते हैं। एंजल्स हैव ऑलरेडी guided you by showing up this card. So please do the needful. अगर फीलिंग्स में आपके ऐसे है रिलेशनशिप तो प्लीज़ डू द नीडफुल. Let's see the intentions. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So true. When you pass from this world, you take nothing with you. हम लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ वापस जाते हैं। बस ये सोल ही हमारा इटर्नल है, जो हमारे साथ आता है, हमारे साथ जाता है। शरीर हम लोग यहीं पे छोड़ जाते हैं। Isn't it? That is how the life is. The cycle of life. What we take is the beautiful memories that we have shared with our loved ones. This is what is being said in this love card. Love Oracle, Lover's Oracle card. We take the beautiful memories that we share with our loved ones. और कुछ नहीं ले जा सकते वापस। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। Let's see what the angel has to say. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Taurus people, if you or your partner, if you are facing this kind of problem, finances, because of career, professional life, if your love life is getting hampered because of your professional life, because of finances, monetary issues, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि financial issues are a factor in your love life right now. हो सकता है some Taurians are facing like this. ऐसा नहीं होगा कि हर एक Taurians के साथ यही फैक्टर्स मैच करेगा, क्योंकि Taurans बहुत सारे हैं. दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग. ये हर एक Taurans के साथ अलग अलग स्टोरीज़ होगा, उनके लाइफ में अलग अलग लव स्टोरीज़ होंगे. सो हो सकता है कुछ Taurans के लिए ये स्टोरी मैच करता हो, रेजोनेट करता हो. दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी सेड अर्लियर, टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू. ओके Taurus people, take it as it resonates with your own love story, own love facts, own love life. Okay, so finances and career issues are a factor in your love life right now. It is highly possible. So देखिए आप लोग कहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं. अगर अलग अलग हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो भी शायद वो हैम्पर कर रहा है आपका लव लाइफ. करियर ग्रोथ एक जन चाहता है और एक जन एक साथ रहना चाहता है. करियर ग्रोथ के लिए शायद बाहर जाना पड़ रहा है ऑफिस के काम से या जॉब या बिजनेस की वजह से, उसके लिए लव लाइफ हैम्पर कर रहा है. फाइनेंसेस के लिए लव लाइफ हैम्पर कर रहा है, सम काइंड ऑफ मॉनेटरी इश्यूज, इसके लिए लव लाइफ हैम्पर कर रहा है. सो
देखिए आप कैसे बैलेंस ला सकते हैं, प्रॉब्लम्स का हल ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, जिससे आपका लव लाइफ आप बचा पाए। एक मिडिल ग्राउंड ढूंढिए। सेपरेशन चुटकी में हो जाता है, डिवोर्स चुटकी में हो जाता है, लेकिन लव लाइफ को ज़िंदा रखना, टिका के रखना, अच्छी तरह से लव लाइफ को मेंटेन करना, यही पे तो कैलिबर है, मेन कैलिबर तो यही पे है, मेन स्किल तो यही पे है, मेन टैलेंट यही पे है, इज़न्ट इट? डिवोर्स सेपरेशन में, एंड ऑफ लव में कितना टाइम लगता है, और आजकल तो लोग मुंह से भी नहीं बोलते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं। माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दिस जनरेशन। So, whatever it is, whatever might be the situation, respective situation in your love life, do the needful, create a middle path, a middle ground, and work on it, and bring a solution to your problem. Okay, moving on to the card of action, Taurus people. It says, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. हो सकता है ये सब वजह से, it could be codependency, obsession, addiction, it could be the financial issues and career professional issues. ये सब वजह से हो सकता है आप joyful feel नहीं कर रहे हैं। हैम्पर करता है ना, अफेक्ट करता है हम लोग को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। लव लाइफ हैम्पर्ड होता है इन सब वजह से। तो क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। मेरे यूट्यूब वीडियोस चैनल पे, डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस है, पॉजिटिव एफर्मेशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर वीडियोस है, कैसे अपने आप अपना ड्रीम्स या फिर थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, इसी को हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो उसे प्लीज़ रेफ़र कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, देखिए क्या कर सकते हैं आप सॉल्यूशन लव लाइफ के तौर पे। रेफ़र टू दोज वीडियोज़ ऑफ माइंड एंड यू विल सर्टनली गेट गाइडेंस फ्रॉम दोज वीडियोज़। ओके, सो प्लीज़ डू द नीडफुल, अपने लव लाइफ को बचाइए। So it says, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. अपने आप को बोलिए, आंखें बंद करके अपने आप को बोलिए, feel it and tell this to yourself that you deserve to feel joyful. उदास मत होइए, चाहे कोई भी वजह हो, कोडिपेंडेंसी हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, कुछ भी वजह हो। डोंट फील डिसहार्टेंड। प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगा। फोकस जहाँ पे जाता है, अटेंशन जहाँ पे जाता है, एनर्जी सारा हम लोग का वहीं पे जाता है। तो क्या आप वो चाहते हैं प्रॉब्लम को बढ़ाना? सर्टेनली नॉट। यू नीड द सॉल्यूशन ऑफ इट। सो फोकस ऑन द सॉल्यूशन। देखिए आप क्या मिडिल ग्राउंड बैलेंस ला सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में, इसे और बेहतर करने के लिए, इसे बचाने के लिए, इसे ज़िंदा रखने के लिए। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. कोई भी circumstances हो, already कुछ सामने आया है आपके सामने through these cards. So, regardless of any circumstances, you can allow joy into your life. और कैसे joy ला सकते हैं? By close your eyes, tell yourself, manifest कीजिए, थॉट्स में लाइए, डिज़ायर्स में लाइए, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में इसको डीपली सिप इन करने दीजिए, लेट इन करने दीजिए। सोचिए कि आई एम अ जॉयफुल बीइंग, मैं जॉय ला सकता हूँ या ला सकती हूँ अपने लव लाइफ में। ऐसा बोलिए, मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है। प्लीज़ रेफर टू माई वीडियोज़। वंस अगेन आई एम सेइंग, यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ हाउ पॉजिटिव एफर्मेशन इज़ डन, हाउ मैनिफेस्टेशन इज़ डन. Okay, Taurus people, and you will certainly find your joy and a blissful love life. Okay, let's see what the romance angels has to say. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. अगर आप अपना लव फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए हैं अभी तक,
तो प्लीज़ जाके एक्सप्रेस कीजिए, अंदर ही अंदर दबा के मत रखिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कह नहीं पाते हैं, डरते हैं, इनसिक्योरिटीज़ से डरते हैं, या फिर शाई होते हैं, बहुत लाजुक होते हैं, वो लोग कह नहीं पाते हैं जाके। तो प्लीज़ जाके सामने जाके बयां करें अपने फीलिंग्स को अपने पार्टनर के प्रति, या फिर जिसे पसंद करते हैं आप। एक्सप्रेस योर लव, गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. Okay, okay, now I'll see this side of the cards. Let's see the feelings part. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. अगर आप किसी रोक टोक से परेशान हैं, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा हो या किसी और वजह से आ रहा हो, वजह तो कुछ उठ के आया है यहीं पे, आपके सामने है ये सब कार्ड्स, तो फील फ्री. कोडिपेंडेंसी अगर होगा, एक दूसरे के ऊपर अगर क्लिंगिंग टाइप का रिलेशनशिप रहेगा, तो आप फ्री नहीं, वन पर्सन विल नॉट फील द फ्रीडम. हमेशा एक जेल जैसा लगेगा बॉन्ड. इट वोंट बी अ लव बॉन्ड, इट विल बिकम अ जेल. देन प्यार फिर वैसा लगने लगेगा. सो फ्रीडम, फील फ्री इन योर लव लाइफ. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. It could be Taurus people for you or your partner. Just check out with whom it's resonating. Help your partner. If your partner is feeling so, please help your partner. Help herself or himself to feel free. Don't cling on to each other. Give space to each other. Feel the freedom in your love life. तभी आप लोग खुश रह सकते हैं, वरना आप लोग खुश नहीं रह पाएंगे अगर ऑब्सेशन रहा, एडिक्शन रहा रिलेशनशिप में. तो सी, प्लेफुलनेस. द रोमांस एंजल्स आर सेइंग प्लेफुलनेस. टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Feel free. एक साथ घूमिए फिरिए, कुछ फन गेम्स कीजिए, फन मोमेंट्स लाइए अपने ज़िंदगी में, प्लेफुलनेस लाइए अपने ज़िंदगी में. प्लेफुलनेस क्या होता है? लाइट हार्टेड, ऑलवेज सीरियस मत रहिए. ये ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये इंसान को पूरा बिगाड़ देता है, उसके लव लाइफ को बिगाड़ देता है. पॉजिटिवनेस, ये और एक फैटल फैक्टर है. इट्स अ फैटल फैक्टर. पॉजिटिवनेस लव लाइफ को जिंदा कभी नहीं रख पाएगा. नेवर. बी प्रैक्टिकल इनफ. थिंक प्रैक्टिकली. इमोशनली मत सोचिए, प्रैक्टिकल होके सोचिए. अगर आप रोक टोक करेंगे अपने पार्टनर को, तो क्या आपका पार्टनर फ्रीडम फील करेगा? क्या उसे अच्छा लगेगा? सो यू हैव टू स्टॉप ऑल दीज. You have to bring changes, positive changes in your love life. Playfulness लाइए. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. This is what the romance angels are guiding you. Okay, so moving on to the card of intentions. Well, the Lover's Oracle card says, see, transformation. Transformation, your relationship one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. ये सब जो वजह उठ के आया है, कोडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इश्यूज, करियर इश्यूज, या फिर एक्सप्रेस ना कर पाना अपने लव फीलिंग्स को, उसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन. चेंजेस लाइए अपने लव लाइफ में, अपने अंदर चेंजेस लाइए. अगर आपको, आपके पार्टनर को अगर ये ज़रूरत है, तो आपके पार्टनर के साथ सलाह मशवरा कीजिए कि हाउ टू ब्रिंग चेंजेस, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटीज़, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लव लाइफ. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे बहुत कुछ मच रहा है एक साथ. This is what the cards are saying. This is what the story of your love life is, Taurus people and your partner.
सो ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर लव लाइफ। तब देखिए कितना सुंदर बन सकता है आपका लव लाइफ, हाउ ब्यूटिफुल इट कैन बी, हाउ ब्लिसफुल इट कैन बी। Your relationship with one another is about to deepen. It will only deepen if you transform each other. If you transform your own self, basically own self. अगर आप पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर के प्रति तो प्लीज़ इस नेचर को, इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए, उसे जीने दीजिए, उसे फ्रीडम दीजिए, रोक टोक मत कीजिए इतना। कोई भी इंसान इसे पसंद नहीं करता है, इतना रोक टोक अपने लव लाइफ में या कुछ भी, किसी से भी। हर एक को अपना फ्रीडम प्यारा है। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स, सो यू हैव टू, इफ यू विन लव, you have to transform, my dear. You have to transform your nature. Only then your love life will be transformed. Well, romance angels are saying healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. किसी टॉरस के साथ अगर पेरेंट्स को लेके लव लाइफ में कोई इश्यूज आ रहा है, हो सकता है एक साथ रहने से ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में। अगर किसी टॉरेंस के साथ ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स के वजह से आपका लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो प्लीज़ forgive your parents. Forgive your parents. माँ बाप जैसे हम लोग को फॉरगिव करते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं बच्चे को, आप लोग भी वैसे कीजिए। लव योर पेरेंट्स अनकंडीशनली, फॉरगिव देम। फर्स्ट फॉरगिव योर सेल्फ फॉर डूइंग दैट एंड देन फॉरगिव योर पेरेंट्स। तभी पीस बरकरार रहेगा, तभी आपके मन में शांति रहेगी। नहीं तो आप शांति खो बैठेंगे और ये सारा का सारा असर आपके लव लाइफ में पड़ेगा। सो हील योर सेल्फ माई डियर, हील योर फैमिली इश्यूज़। अगर कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहा है टॉरस आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, तो प्लीज़ उसे हील कीजिए। हीलिंग से ही बात बनेगी, isn't it? Okay, so moving on to the card of action. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. This could be Taurus from your side. This could be from your partner's side as well. ये action में आया है. So you are being asked to look deep within your heart and you will feel my love. Either your partner is saying this to you or you are saying this to your partner. Anything is possible. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Let's see what the romance angel has in store for you. Give your relationship a chance. Work on your partnership. ये सर्टेनली ये कार्ड तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं आपके लव लाइफ में। को डिपेंडेंसी आया है, एडिक्शन आया है, ऑब्सेशन आया है, पॉजिटिवनेस आया है, फाइनेंसेस, करियर की तरफ से फाइनेंशियल इश्यूज़, मॉनिटरी इश्यूज़ आया है, प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर कर रहा है आपके लव लाइफ को, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, फैमिली लाइफ लेके कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ उठ के आए हैं आपके लव लाइफ में। सो प्लीज़ हैव फेथ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर पार्टनरशिप। जैसे हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं, स्कूल लाइफ, एडुकेशन में हार्ड वर्क करते हैं, तभी जाके रिज़ल्ट अच्छा होता है। ये लव लाइफ भी तो वही है, इसमें भी हार्ड वर्क ज़रूरी है। देखिए आप कैसे मिडिल ग्राउंड ला सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं, कैसे हार्ड वर्क कर सकते हैं अपने लव लाइफ को बचाने के लिए। आपने प्यार किया है उस इंसान से, सो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका लव लाइफ और बेहतर हो, isn't it? Would you like to have separation or a divorce? Certainly not, I guess. तब फिर लव का क्या मायने रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा लव। इसे बचाइए, इसे और उभर के आने दीजिए,
इसके लिए जो करना है हार्ड वर्क वो कीजिए. दिस इज़ व्हाट द रोमांस एंजल्स आर गाइडिंग यू एंड आस्किंग यू. दे हैव कन्वेड देयर मैसेज दैट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. अगर आप अलग होने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. हार्ड वर्क कीजिए, तब देखिए कैसे बेहतर बना सकते हैं. रिलेशनशिप फिर से जुड़ जाएगा. अगर सेपरेशन नो कांटेक्ट का फेस चल रहा है तो फिर से आप लोग एक हो जाएंगे और ब्लिसफुल मोमेंट्स फिर से वापस आएगा. हैप्पी मोमेंट्स, जॉयफुल मोमेंट्स फिर से वापस आएगा. सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. अपने लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. तभी जाके ये पॉसिबल होगा. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. Okay, so now I'll move on to the True Emotions Oracle deck. Taurus people. Let's see what true emotions is there for you in store. This is the card and it says, come back in my life. Come back in my life. It's highly possible that few Taurians must have been separated already. Highly possible. तभी शायद ये कार्ड आया है. So either Taurus, you or your partner is saying, come back in my life. Give your relationship a chance. This is what the romance angels have guided you. Give your relationship a chance. Work hard on your relationship. Work hard on your partnership. Come back in my life. Please अलग मत होइए. एक साथ रहिए. अपने लव लाइफ को बचाइए. इसके लिए जो करना है वो कीजिए. ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, अपने लव लाइफ को. वर्क हार्ड ऑन इट. लेट्स सी व्हाट द फेरीज वांट्स टू गाइड यू. यूनिवर्स, प्लीज गाइड द Taurus people. Please let them know what they need to know in their love life in order to improve their love life. Please guide the Taurus people and their partner. Please guide the Taurus people and their partner, universe. Well, this card says, ask for help. Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. अपने अंदर दबा के मत रखिए अपने दुख दर्द को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को. आस्क फॉर हेल्प. यूनिवर्स से हेल्प मांगिए. हम लोग को हमेशा यूनिवर्स से हेल्प मांगना चाहिए. यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस. यू नीड टू आस्क. यू नीड टू आस्क फॉर द हेल्प. तभी जाके यूनिवर्स आपको हेल्प कर पाएगा. You as a person, you as a spiritual being need to ask for the help to the angels. Ask for the guidance, my dear, and you will certainly get help. ये जो problems आपके relationship में चल रहा है, वाकई में बहुत सारे problems चल रहा है. हो सकता है कुछ Taurians के साथ ऐसा हो रहा होगा. So ask for help. This is what the universe is guiding you. उनसे यूनिवर्स से हेल्प मांगिए. आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लव रीडिंग, Taurus people. Hope you guys liked it and enjoyed it. Wish you all the very best for your love life. Do check on my
manifestation videos and positive affirmation videos on this Divine Blessing YouTube channel of mine, do subscribe to my channel and hit the bell icon for further notification. Okay, so wish you all the very best. See you in my next love reading. Till then, take care. Bye bye.